So can you see the screen? Yes, ma'am. And can you hear my voice clearly? Yes. Okay, that's great. Okay, let's first discuss an overview of the subject and then we shall continue our conversation. So basically, FM, the full name of this subject is financial management. And we have 15 chapters that we need to go through, or 15, you can say, main topics that we need to go through. And if we study on a daily basis and follow our schedule, most probably we might take 2 months and we shall complete our entire F9 syllabus, inshallah. If we study thrice Okay. a or even if we study twice a week, I think it will be good enough and we will be able to complete. Okay. Whole course. So yes, that's it. And let me just show you what will be the examination structure. Like, right. So basically, this will be the format of the exam. Section A, as we all know, MCQs, we are very familiar with it. 30 marks. Section B will be mini case studies, like 3 mini case studies will be there, 10 marks each. And these are also like MTQs, or you can say MCQs. Based on one case study, you will get 5 interlinked MCQs or MTQs. This also constitutes 30 marks. And the next section C, where you need to complete 2 compulsory questions, 20 marks each, this will constitute of 40 marks. So over here, they have specified it very clearly that section C, syllabus area D, and E. So these are the 3 major areas through which they will be asking the CRQs, or the compulsory questions will be from this area specifically. So what we will do, we will first start with these areas and try to complete these areas. And then we will focus on the other little areas that we are left with. Okay. So 2 compulsory questions, 20 marks each, 40 marks, and over here 60 marks of MCQs. So as you can see, the weightage has been divided in such a way that there is a high possibility of any student to clear the exam. They have not made it a very difficult one. Like out of 60 percentage of MCQs, you can at least score 40. That like very minimum, if I say, if you have studied well, so 40 is an easy score. And from 40 over here, if you just score half the marks, like 50 percentage from here, you just need to score 20 marks. So you can easily score 40 plus 20, 60 marks. Like this is very basic, which I am telling you that if you have studied and followed the, Yes. and you can easily score here. Okay. Now, Saif, would you like me to teach you in Urdu or English or mix, whichever one you are comfortable? We can go. उर्दू ठीक है मैम. इंग्लिश नहीं. उर्दू. उर्दू में पढ़ना है, अच्छा ठीक है, बेहतरीन हो गया। ठीक है जी। तो अब इसमें हम जो पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, हम सेक्शन सी, डी और ई से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन सी जो है हमारा, वो वर्किंग कैपिटल है। तो हम सबसे पहले वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है। ठीक है। अब इसमें होता ये है, सैफ, कि टेक्निकल नॉलेज तो हम लेंगे साथ साथ, बट इसके साथ साथ हम कुछ सॉफ्ट स्किल्स की नॉलेज भी हम साथ साथ थ्रू आउट द कोर्स कर रहे होंगे, जिसमें मैं आपको वक्तन फवक्तन टिप्स वगैरह दे रही होंगी, जो कि सिर्फ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं, बल्कि आपको बाकी स्किल के सब्जेक्ट्स में भी काम आएगा। ठीक है। तो जैसे कि मेरी आपकी कॉन्वर्सेशन रही फेसबुक पर और आपने मुझसे अपनी सारी डिटेल में अपना हिस्ट्री अपना पूरा शेयर किया, तो उसको सामने रखते हुए मैं आपको चीज़ें हाईलाइट भी करती जाऊंगी साथ साथ कि भाई ये चीज़ है सैफ, इस पे तवज्जो करिएगा, या इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको एक कस्टमाइज्ड पता चलता रहेगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना है। प्लस थ्रू आउट द कोर्स, लाइक जैसे ही हमारा हाफ द कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, या जैसे ही हमारा कोई एक मेजर टॉपिक खत्म होगा, तो उसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन जैसे मैंने क्लास में करवा दिया, तो एक मैंने आपको होमवर्क में दे दिया कि अब आप ये करके लाके मुझे इसका आंसर दिखाएं।
तो जब आप मुझे इसका आंसर दिखाएंगे तो मैं फिर उसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकूंगी कि एग्जैक्टली आप कहाँ लैगिंग हो रही है या लैग बिहाइंड कर रहे हो, या क्या चीज इसमें और बेहतर हो सकती है, या इसमें क्या चीज मिस आउट हो रही है। तो वो फिर और बेहतर तरीके से आपको गाइडेंस इस पे मिल जाएगी। ठीक है सैफ, यहाँ तक कोई बात जो जहन में आ ठीक रही, हो गया। कोई सवाल? नहीं मैम, फिलहाल तक तो अभी तक तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक ये है, अगर फर्दर जब आगे डिस्कशन करेंगे तो फिर पता लगेगा सारी बात का। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पेज 41। अच्छा, मैं फॉलो कर रही हूँ बीपीपी की वर्कबुक, और मैं ये आपको पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगी अगर आपको इसे फॉलो करना है। सो पेज 41, पहले हम इसकी थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज गेन कर रहे होंगे, फिर हम साथ साथ इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते जाएंगे कि किस तरह की चीजें आ रही। ऑल राइट, ओके। फर्स्ट टेल मी सैफ के फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब वर्ड आप सुनते हैं इस सब्जेक्ट का तो आपके माइंड में क्या आता है? व्हाट कम्स टू योर माइंड कि ये सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, या ये अकाउंट्स का कौन सा हिस्सा होगा? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा आपके। वर्किंग कैपिटल जो आपका होता है, मींस के आपके रिसीवेबल्स और पेबल्स, कैश मैनेजमेंट सारी इसमें आ जाती है। रिसीवेबल्स, पेबल्स और आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसके हवाले से चीजें आ जाती हैं इसमें सारी। करेक्ट, सही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस, फाइनेंस बोले तो जी पैसा, पैसा बोले तो दस। कंपनी की दो ही सोर्सेज ऑफ इनकम है, किसी भी इदारे की या किसी भी बिजनेस की। अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो वो दो हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो दो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं? डेट फाइनेंस एंड इक्विटी फाइनेंस। वेरी गुड। या तो वो डेट से पैसा उठा सकता है, या तो वो इक्विटी या कैपिटल से पैसा उठा सकता है। ठीक है, तो डेट से पैसा उठाना है तो मतलब बैंक से लोन लेगा या कोई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेगा। और अगर इक्विटी से पैसा उठाना है तो उसका क्या मतलब होगा? अपनी वो ओनरशिप डिवाइड करेगा, शेयर ओनरशिप, सेल करेगा अपने। एग्जैक्टली। ओनरशिप, ओनरशिप शेयर्स सेल करेगा। एग्जैक्टली, शेयर्स अपने स्टॉक मार्केट पे लगाएगा ताकि उसको पब्लिक प्रोवाइड करे सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसके शेयर्स बाय करके। ठीक है, तो दैट इज देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट फाइनेंस एंड इक्विटी फाइनेंस। अब हम आ रहे हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। वर्किंग कैपिटल अभी थोड़ी देर पहले आपने समझाया बहुत अच्छे से कि ये वो कैपिटल है जो काम करने में हमारी मदद करता है, डे टू डे काम। जाहिर है, फैक्ट्री में अगर जूते बन रहे हैं तो जूते बनाने के लिए आपको डे टू डे वर्किंग कैपिटल चाहिए हाथ में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो वर्किंग कैपिटल से आप क्या कर रहे होगे? इन्वेंट्री आप बाय कर रहे होंगे, एंड उसमें परचेजेस रॉ मटेरियल आपका आ रहा होगा। ठीक है, ये और इमीडिएट चीजें आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप परचेज कर रहे होगे। ठीक है, और इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको एक लिक्विडिटी लेवल, आपको इतना कैश पास रखना चाहिए कि कोई अगर कोई मसला एकदम हो जाता है तो आपके पास इतना कैश पास अवेलेबल हो कि आप उसको मैनेज कर सकें। एग्जैक्टली exactly. जब कोई मुश्किल हालात आ जाएं, जैसे कि पिछले सालों में कोविड आ गया था, तो आपके पास वो कंपनीज या वो बिजनेसेस सरवाइव कर सकें जिनके हाथ में वर्किंग कैपिटल था, जो 2 महीने जी 3 महीने तक एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाए और रिटेन कर पाए। लेकिन उसके जी। बाद फिर जाहिर है फिर सबके लिए बहुत प्रेशर होने लगा, बट वर्किंग कैपिटल का होना बेहद जरूरी है। अब ये मैटर करता है, ये डिसाइड करना है कंपनी के ओनर्स को, डायरेक्टर्स को, कि आखिर कितना वर्किंग कैपिटल जमा करके रखें, कितना होना चाहिए मेरे इदारे के लिए जो कि मेरे हाथ में हो और मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। तो वो सब समझने के लिए और पढ़ने के लिए हम अब ये चैप्टर में एंटर होंगे कि भाई कितना आखिर वर्किंग कैपिटल होना चाहिए किसी भी इदारे के पास, एक हेल्दी वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। कब ये वर्किंग कैपिटल आप ऐसा लगने लगता है कि आपने बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की शक्ल में रख ली है, विच इज ब्लॉकिंग द इन्वेस्टमेंट्स, विच इज ब्लॉकिंग योर कैश, एंड जिसकी वजह से सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ये सारी मामलात अब हम इस चैप्टर में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के पीछे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? नंबर वन पढ़िएगा, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर टू पढ़िएगा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, एंड नंबर थ्री कॉन्फ्लिक्ट। रिट। कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहला नंबर है प्रॉफिटेबिलिटी का, कि भैया अगर आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखना है तो कुछ तो वर्किंग कैपिटल हाथ में होना चाहिए ना, और इतना प्रॉफिटेबल तो हो कि आप रख सको वर्किंग कैपिटल हाथ में। ठीक है। लिक्विडिटी, जैसे थोड़ी देर पहले आप ही ने बताया कि लिक्विडिटी होनी चाहिए कि ताकि कोई भी मुश्किल वक्त आए या कोई अचानक से कोई अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हो तो हमारे हाथ में इतना पैसा तो हो कि हम अपने लाइबिल्स को पे ऑफ कर सकें और अपने उस मुश्किल घड़ी में निकल सकें उससे। लिक्विडिटी। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोर्स। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे जाहिर है, ओनर्स कुछ कह रहे हैं, मैनेजर्स कुछ कह रहे हैं, डायरेक्टर्स कुछ कह रहे हैं, एम्प्लॉयज कुछ कह रहे हैं, और ये सब अपने अपने मफाद की बात कर रहे हैं। तो जब ये सब अपने अपने मफाद की बात कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। तो कंपनी की हेल्थ के लिए क्या चीज बेटर है? वर्किंग कैपिटल कितना हो, कितना परसेंटेज हो, कितना ना हो, कितना हम कंपनी में री इन्वेस्ट करें कैपिटल की शक्ल में, कितना हम कंपनी के एम्प्लॉयज को खुश रखने के लिए उनको बोनस की शक्ल में दें, कितना हम डायरेक्टर्स को मोटिवेटेड रखने के लिए उनको कोई कमीशन कोई बोनस दें। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है, ये एक कश्मकश रहती ही है थ्रू आउट जो भी बिजनेस कर रहा है या जो भी कंपनी चला रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को भी हम रिजॉल्व करेंगे वर्किंग कैपिटल अगर ढंग से मैनेज करना सीख जाएं तो। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल प्लानिंग। अब इसकी प्लानिंग में बहुत सारी चीजें हमें देखनी होंगी कि क्या चीज है, क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल को, यानी कि हम किन चीजों को सामने रखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा चलो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको देखकर हम डिसाइड करते हैं कि इतना वर्किंग कैपिटल हेल्दी रहेगा कंपनी के लिए या नहीं। नेक्स्ट, अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है, कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है, वर्किंग कैपिटल रेशियोज क्या होते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होती है, और ओवर ट्रेडिंग क्या होती है। ये सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कर रहे होंगे। मोर ओवर इन्वेंट्री में हम ईओक्यू मॉडल, डिस्काउंट्स, बफर स्टॉक, जेआईटी, ये थोड़ा सा F2 और F5 का ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज हम यहाँ पे ले रहे होंगे। रिसीवेबल्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, फॉरेन अकाउंट्स रिसीवेबल इवैल्यूएशन, ये सब रिसीवेबल्स एरिया में। और पेबल्स में मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, इवैल्यूएटिंग डिस्काउंट्स एंड फॉरेन अकाउंट्स पेबल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो नेट वर्किंग कैपिटल डेफिनेशन पढ़िएगा सैफ। Net working capital of a business is its current assets less its current liabilities. परफेक्ट। अब ये जो जो चीज मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ वो आपने अपने पास नोट्स की शक्ल में लिख लेना है। अच्छा, अब आपने तीन चीजें मेंटेन करनी है। ठीक है। नंबर वन, आप मेंटेन करेंगे नोट्स। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ बुलेट फॉर्म में लिखेंगे ताकि आपको एग्जाम से पहले पहले आपकी चीजें ये चैप्टर वाइज तैयार हो और आपको पूरी टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। तो इस नोट्स में जो की लर्निंग पॉइंट्स हैं या की टर्मिनोलॉजीज हैं या की डेफिनेशंस हैं या की बुलेट्स हैं कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज के, तो वो हम देख रहे होंगे। तो उसके आप चैप्टर वाइज 1 पेजर 2 पेजर आप अपने बुलेट फॉर्म में जो आपको समझ आ सके और जो आपको याद रह सके एग्जाम से पहले क्रिएट करते जाएंगे। दूसरी चीज आप क्रिएट करते होंगे फॉर्मूला शीट। ठीक है, हर चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे जो हमें लर्न करने पड़ेंगे। कुछ होंगे जो आपको फॉर्मूला शीट में मेंशन भी होंगे, मगर कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको याद करने होंगे। तो वो फॉर्मूला शीट आप एक मेंटेन कर रहे होंगे साइड बाय साइड। और अगर वो क्लास के दौरान ही आप अपने पास रजिस्टर और कॉपी रखें तो फॉर्मूला शीट तो हम क्लास के दौरान ही मैं आपकी क्रिएट करवाती जाऊंगी ताकि आपको अलग से घर में बैठना ना पड़े। सिर्फ नोट्स के लिए आपको घर में बैठना पड़ेगा अलग से, और फिर रिवीजन किट के क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए। तो फॉर्मूला शीट आपकी हाथों हाथ तैयार होती जाएगी। सो नोट्स, फॉर्मूला शीट एंड देन फाइनली रिवीजन किट के क्वेश्चंस, ये तीन चीजें हम कर रहे होंगे। Right. अच्छा जी। तो अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन आ गई है कि करंट एसेट में से आप करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल निकल करके आ जाएगा। करंट एसेट किसको बोल रहे हैं, पढ़िए। कैश। Cash, inventory, amount of receivables from customer, परफेक्ट। एंड देन overdraft, short-term loans, and amount payable to supplier. एग्जैक्टली, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर वन,
to increase profits, and number two, to ensure, Profit, पढ़िए, sufficient sufficient liquidity to meet short-term obligations as they fall due. ठीक हो गया। तो ये मेजर दो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट को रखना, इंक्रीज करना, बढ़ाना है। नंबर टू, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इसलिए ताकि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस फॉल ड्यू हो जाए तो उनको हम पे ऑफ कर सकें टाइमली बेसिस पे। अच्छा जी, अब प्रॉफिटेबिलिटी में इफ अ बिजनेस ऑपरेट्स विद एक्सेसिवली लो लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर किसी बिजनेस का, किसी इदारे का वर्किंग कैपिटल बहुत लो है तो क्या होगा, मतलब इससे क्या नुकसान है। इससे ये दो नुकसान है, दिस में लीड टू ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स एंड लोअर प्रॉफिट्स। ये दो मसले आ जाएंगे सामने। नंबर वन बोलिए सैफ। Trading problems or lower profits. लोअर प्रॉफिट्स, तो वर्किंग कैपिटल अगर कम होगा तो हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स एंड लोअर प्रॉफिट्स। अच्छा जी, अब ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये कैसे पेश आ रही हैं, तो आइए देखते हैं। लो इन्वेंट्री, पढ़िए। This may means that delivery lead time to customers are excessively high, or that a business does not have enough inventory to meet peaks in demand. This is likely to be lost sales. हम्म, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है, आपको क्या समझ आ रहा है, लो इन्वेंट्री कैसे हो जाएगी। इसमें तो कस्टमर को डिलीवर करने में, अगर आपके पास जो उसमें जो डिलीवरी करने में जो लीड टाइम आपको एक नॉर्मल टाइम होता है, उस वो आपका अगर ज़्यादा हो जाता है, तो और आपके पास अगर इन्वेंट्री कम है, तो अगर आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएं एकदम से, तो आपके पास अगर इन्वेंट्री नहीं है, आपका एक तो लीड टाइम भी ज़्यादा लगेगा उसको डिलीवर करने में, और मतलब जितनी कम इन्वेंट्री होगी और आपको फिर अपने कस्टमर्स लूज करेंगे आप। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो सेफ इसमें हो ये रहा है कि आपके पास चूंकि वर्किंग कैपिटल की किल्लत है, पैसे कम है, तो आपके पास इन्वेंट्री भी आपने कम मंगवाई हुई है। तो जब कम मंगवाई हुई है और अचानक से ज्यादा सेल आ जाए या अचानक से ज्यादा ऑर्डर्स आ जाएं, तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिलीवर ऑन टाइम। आपका लेट डिलीवरीज हो रही होंगी, जब लेट डिलीवरीज हो रही हैं, लेट माल तो पहुंच, लीड टाइम ज़्यादा और होगा। टाइम ज्यादा हो रहा है, लीड टाइम ज्यादा हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, आपकी सेल्स लूज हो रही। अब यहाँ पे एक मुद्दे पे आए, ये तो हो गई टेक्निकल बात, ठीक है। अब ये टेक्निकल बात सैफ आपको हो सकता है याद भी हो जाए, बल्कि आपने बड़ा अच्छा समझाया, मगर असल बात पता है क्या है, कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे और आपको ये सवाल आ जाए, और ये सवाल एक सिनेरियो की शक्ल में आए कि मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स के पास इन्वेंट्री इस वक्त कम है, और जिसकी वजह इन्वेंट्री कम है, और मिस्टर एक्स के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट्स भी लो शो हो रहे हैं, और मिस्टर एक्स इंटरेस्टेड नहीं है, उनका ध्यान नहीं है कि वो अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेहतर करें। तो आप जरा बताइए एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, आप इसको किस तरह एनालाइज कर रहे हैं और आप मिस्टर एक्स को क्या सजेस्ट करेंगे। तो अब ये सवाल दर हकीकत इस टॉपिक का है, वर्किंग कैपिटल के टॉपिक का है, और इससे जो इन्वेंट्री की बात हो रही है और लोअर प्रॉफिट्स की बात हो रही है, तो जहन में यही क्लिक होना चाहिए कि इन्वेंट्री रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल, और ये लो प्रॉफिट्स भी डेफिनेटली जाहिर है, अगर लो इन वर्किंग कैपिटल है तो लो प्रॉफिट्स भी होंगे। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया ठक करके। लेकिन अब ये बात एग्जामिनर को समझाने के लिए हम सिंपली एक लाइन में का जुमला नहीं लिख सकते, हमें पूरी कहानी बनानी पड़ेगी, और कहानी में हमें यूज करना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी, जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। टर्मिनोलॉजी, हर फील्ड में ना, हर फील्ड की एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है। अब अगर आप डॉक्टर बनने जाओ, एमबीबीएस, तो उनकी अपनी भाषा होती है। वो अपने जब आपस में दो डॉक्टर्स बात कर रहे हो और आप कभी आप सुनिए, तो वो अपनी भाषा में बात कर रहे होते हैं, जो आम पेशेंट को समझ नहीं आता कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। इसी तरह जब दो अकाउंटेंट्स बात कर रहे हैं, या आप एज एन अकाउंटेंट आप समझा रहे हो एग्जामिनर को, तो आपको भाषा यूज करनी है अकाउंटेंसी की। अब इसमें मिस्टेक क्या होगी कि हम यूजुअली मिस आउट कर देंगे, या कोई स्टूडेंट यूजुअली मिस आउट कर देगा कि वो, उसको आता है, उसको टेक्निकल पॉइंट भी उसका क्लियर है, बट वो समझा नहीं पाएगा, और वो क्या चीज मिस कर देगा, वो ये वर्ड यूज करना मिस कर देगा। वो लिखेगा यही, मगर वो ये टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करेगा। वो लिखेगा यही बात, लॉस्ट सेल्स, मगर वो अपनी आसान भाषा में लिखेगा, और वो ये टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करना भूल जाएगा, चूक जाएगा।
जिसकी वजह से मार्क्स लूज होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर अब आपसे F9 का लेवल हो या F6 का लेवल हो या F8 का लेवल हो, अब वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आपको अकाउंटेंसी की भाषा आ जानी चाहिए और आप मुझे उस भाषा में एक्सप्लेन करो। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स के जहाँ जिसकी वजह से मार्क्स लूज होते हैं, भाषा का, सही भाषा का, अकाउंटेंसी भाषा का इस्तेमाल ना करना। तो वो आपने अब यहाँ पे करना है कि जब वो सिनेरियो दिया गया, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया, मिस्टर एक्स, वो इन्वेंट्री उनके पास बहुत थोड़ी सी रह गई है और वो उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे, उनके पास कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है, अच्छा डिपार्टमेंट भी नहीं है जो इसको हैंडल करे, प्लस उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन है जहाँ पे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट्स बहुत लो रिकॉर्ड हुए हुए हैं पिछले साल से। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आपने पहले फैक्चुअल आपने बताया कि मिस्टर एक्स इस वक्त इन्वेंट्री पे कम ध्यान दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इन्वेंट्री में कम ध्यान देने का मतलब ये है कि उनके पास ये हाई पॉसिबिलिटी है कि लो लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हो, और लो लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के नतीजे में ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं और लोअर प्रॉफिट्स अराइज हो सकते हैं। देखा, अब आप लिंक कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप और आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो। लो लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग प्रॉब्लम, लोअर प्रॉफिट्स। और जिसकी वजह से क्या होगा, अगर अगर इन्वेंट्री लो है आपके पास तो आपकी डिलीवरी टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, लीड टाइम टू कस्टमर वो एक्सेसिवली हाई हो जाएगा। जब ये एक्सेसिवली हाई हो जाएगा, देयर विल बी नॉट इनफ इन्वेंट्री टू मीट द डिमांड and therefore it would result in loss of sales. Full stop. राइट। Therefore, it becomes very important for Mr. X to pay attention to the inventory management system. Either he should hire experts or either he should indulge a proper inventory management software so that the inventory is maintained at optimum level to meet the demand of the customers. राइट। आपको बात समझ आ रही है? ये पूरा एक कहानी बन गई और आपने स्टार्ट एक पॉइंट से किया और दूसरे पॉइंट पे एंड किया और बीच में सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की। इसीलिए जरूरी है कि आप नोट्स बनाएं, और इसीलिए जरूरी है कि उन नोट्स में ये जो की बुलेट्स हैं, बुलेट्स में आपने यही लिखना है कि लो लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के नतीजे में क्या होगा। आपने एरो बनाया, दो एरोज बनाए, एक एरो में लिखा ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स, दूसरे एरो पे लिखा लोअर प्रॉफिट्स। फिर आपने आगे नीचे इन लो इन्वेंट्री के होने के नतीजे में क्या होगा, एक एरो बनाया लीड टाइम, एक एरो बनाया कि लीड टाइम एक्सेसिवली हाई, दूसरा एरो बनाया कि अनेबल टू मीट डिमांड देयरफॉर लॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इस तरह जब आपके नोट्स क्रिएट होते जाएंगे ना, तो आपको बड़ी आसानी होगी ये टर्मिनोलॉजीज को जहन में रखने में भी, और प्लस टेक्निकल चीज भी याद रहेगी, और लास्ट मोड में आपको टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाइए, लो रिसीवेबल्स। अब लो रिसीवेबल्स के नतीजे में क्या होगा भाई, जरा बताइए आप पढ़ के। If this means that a business credit terms are overly strict and that long credit periods are not being made available to its customer, this may lead to loss of sales. ठीक है, तो लो Business credit terms रिसीवेबल्स एरो बनाए, क्रेडिट टर्म्स ओवरली स्ट्रिक्ट, फुल स्टॉप। दूसरा एरो बनाए कि लॉन्ग क्रेडिट पीरियड्स आर नॉट बीइंग मेड अवेलेबल टू कस्टमर, देयरफॉर लॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये दो एरोज बन गए आपके कि लो रिसीवेबल होने के नतीजे में ये दो आपके पास नताइज निकल करके आ रहे हैं। नंबर वन, इसका मतलब हो सकता है कि बिजनेस के क्रेडिट टर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, एंड देयरफॉर क्या हो रहा है कि क्रेडिट पीरियड्स बहुत ज्यादा। ना होने की वजह से वो आपकी मतलब आप क्रेडिट टाइम पे नहीं दे रहे, कस्टमर्स को क्रेडिट टाइम नहीं दे रहे, मतलब आपको टाइम नहीं दे रहे पे करने के लिए। तो उस वजह से फिर आपकी वो कहेंगे ठीक है आप टाइम नहीं दे रहे तो हम आपसे चीज नहीं खरीदते। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये होता है कि सेल लूज हुई, देयरफॉर प्रॉफिट लूज हुआ, खत्म बात। राइट। एक लाइन और भी लिखी जा सकती है इसमें कि लॉस सेल की वजह से आपका प्रॉफिट भी लूज हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लिक्विडिटी की तरफ। Liquidity, every business needs adequate liquid resources to maintain day-to-day cash flow such as wages and payments to suppliers. जाहिर है कैश इन हैंड का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी आप वेजेस पे ऑफ कर सकते हो, सैलरीज, सप्लायर की पेमेंट कर सकते हो और बिजनेस रेगुलर बेसिस पे चला सकते हो।
कोई माल खत्म हो गया तो इमीडिएट बेसिस पे माल भी मंगवा सकते हो। जब तक पैसा हाथ में नहीं है और पैसा सारा का सारा आपने अगर स्टॉक या इन्वेंट्री में लगा दिए, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है फिर बिजनेस चलाने में। तो लिक्विडिटी भी होना जरूरी है, जो कि वर्किंग कैपिटल का ही हिस्सा है, कि आपके हाथ में पैसा हो, लेकिन अब इतना ज्यादा भी ना हो कि वो पैसा जो है आपके लिए वेस्ट हो रहा हो। तो सैफ, मुझे ये बताओ कि ज्यादा पैसा भी हाथ में होने से क्या नुकसान है। ज्यादा वैल्यू से क्योंकि वक्त के साथ पैसे की वैल्यू गिरती है आपकी, वो क्या, इसको क्या हम क्या कहते हैं इधर, आपकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉस हो जाता है इसमें। ठीक है, और आपके पास ज्यादा कैश पड़ी हुई है और आप उसको कहीं इन्वेस्ट करके कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक रीजन तो ये समझ में आता है। स्पॉट ऑन है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, कि आपका जो कैश की वैल्यू है वो दिन ब दिन, अकाउंटेंसी की दुनिया में ये माना जाता है कि पैसे की वैल्यू दिन ब दिन गिरती है। देयरफॉर इस पैसे को खाली नहीं रखो, इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो ये हमें हमेशा सिखाया जाता है और वाइज बोला जाता है कि ये वाइज डिसीजन होता है कि आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें, ना कि उसको कागज की शक्ल में रखें। सो एक्सेस एक्सेस फंड्स भी आपके लिए, कंपनी की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, और बिल्कुल ना के बराबर या लो फंड्स भी आपके कंपनी के हेल्थ के लिए नुकसानदेह। देयरफॉर हमें एक दरमियाना रेशियो रखना है या परसेंटेज रखना है, कि हमारे हाथ में इतना पैसा तो हो कि हम अपना डे टू डे बिजनेस स्मूथली चला रहे हैं, और ज्यादा एक्सेसिव भी ना हो कि हम अपनी मनी की वैल्यू लूज ना कर दें। ठीक है, तो ये दो चीजें सामने निकल करके आई हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। लिक्विडिटी कहती है पैसा हाथ में रखो, प्रॉफिटेबिलिटी कहती है कि भाई आप अगर ज्यादा पैसा हाथ में रखोगे तो आपके पैसे की वैल्यू गिरती चली जाएगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में, ये अब जरा हम इसको पढ़ते हैं कि क्या है ये। पढ़िए फॉर एग्जाम्पल। A decision is made to invest in higher inventory, for example, to reduce delivery lead times or receivables, to allow longer credit terms in order to boost sales and profits. Then this will tie up funds in higher net working capital, and this will reduce liquidity. लिक्विडिटी, ठीक है, क्या कह रहे हैं, समझाइएगा। इसमें यह है कि अगर आप इन्वेंट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेंट्री में पैसे ज़्यादा डालेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को क्रेडिट पे सेल्स करें, क्रेडिट पे दें, और ताकि आपका सेल्स भी बूस्ट हो और प्रॉफिट भी बूस्ट हो, तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं वो वर्किंग कैपिटल में फंस जाएंगे, यानी कि ट्रेड रिसीबल में, इन्वेंट्री में, और फिर आपका उस हिसाब से पेबल्स भी आपके ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है आपकी रॉ मटेरियल्स की भी कॉस्ट एक होती है, और इस वजह से फिर आपकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, लिक्विडिटी आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। राइट, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें सेल्स बढ़ानी है, सेल्स को बढ़ाने के लिए हमें डिमांड मीट करनी पड़ेगी, डिमांड मीट करने के लिए आपके पास हर वक्त स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। अब हर वक्त स्टॉक अवेलेबल बिल्कुल। होने के लिए आपको स्टॉक खरीद के रखना पड़ेगा। जब खरीद के रखना पड़ेगा तो आपका जो पैसा है वो स्टॉक खरीदने में जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। जब हाई इन्वेंट्री आपके पास होगी और फिर आप रिसीवेबल्स को भी अलाउ करेंगे लॉन्गर क्रेडिट टर्म्स, ताकि आपकी सेल ज्यादा हो, बूस्ट हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, आपके पास कैश इन हैंड कम हो जाएगा। और जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप पेबल्स को टाइमली पे ना कर पाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप डे टू डे बिजनेस रनिंग में थोड़ा सा पीछे रह जाएं, नहीं आपको तंगी महसूस हो रही हो, क्योंकि जाहिर है जब तक सेल से पैसा नहीं आएगा तब तक आपके हाथ में पैसा नहीं है। तो ये नहीं। थोड़ा सा आपस में फाइट हो जाती है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसमें एक दरमियाना रास्ता निकालना जिसमें ना प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट पड़े, ना लिक्विडिटी बहुत हाथ तंग पड़ जाए, तो दोनों को एक दरमियानी रास्ता निकालना ये जरा मुश्किल होता है। बट खैर, मैनेजर्स और डायरेक्टर्स इसी काम के लिए बैठे होते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजर्स, कि ताकि वो गाइड कर सकें और एक बेहतर तरीका निकाल सकें। इफ बिल्कुल ऐसा ही है if the levels of inventory and receivables are high because working capital is not being managed well, then improved management of the warehouse and credit control may allow both higher liquidity and higher profitability। यानी कि
आपके पास लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री भी हाई है, रिसीवेबल्स भी हाई है। और अगर आपने वर्किंग कैपिटल के लिए कोई बेहतरीन टीम हायर करके मैनेज करने वाला बंदा ना रखा और क्रेडिट कंट्रोल करने वाला बंदा ना रखा, तो फिर आपको मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर आपने इसको सही तरह से मैनेज कर लिया तो मुश्किल नहीं होगी। लिक्विडिटी भी हायर रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर रहेगी, दोनों चीजें मस्त चलेंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ टेक्निकली थोड़ा अपने पॉइंट्स पिकअप कर रहे हैं ताकि फिर आगे जब क्वेश्चन आए तो हम उसको कर सकें। अच्छा, याद रखिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसमें 50-50 रेशियो है। यानी कि थ्योरी और सम्स 50-50 वेटेज है। कि थ्योरी भी 50% है, इसमें करनी पड़ेगी आपको, आंसर्स लिखने आने चाहिए, और 50% कैलकुलेशन है कि कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता आप बोलो कि नहीं इसमें तो 80% कैलकुलेशन है तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लूं तो बस हो जाएगा मेरा। ऐसे नहीं, आपको दोनों साइड पे नहीं मेहनत करनी होगी, थ्योरी भी आपको आनी चाहिए और कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर ही ऐसा है 50-50। और मैम, ये एग्जाम्स में एग्जाम डे पे डिपेंड नहीं करता कि आपको एग्जाम किस तरह आता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, क्योंकि पीएम में मैंने अटेम्प्ट कर चुका हूँ, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि रेशोज 50-50 है उसका भी कहते हैं, लेकिन असल में जब एग्जाम आता है तो बाज़ औक़ात आपका ये थ्योरी वाला रेशो 70% हो जाता है और न्यूमेरिक वाला 30% हो जाता है, या बाज़ औक़ात आइदर साइड ये चेंज होता रहता है। तो क्या ये ऐसी है या ऑलवेज 50-50 होता है? नहीं, लेकिन पीएम में ये सीन है, पीएम में 70-30 है। पीएम में कैलकुलेशन ज्यादा है और 30% थ्योरी है। अब हाँ, ये आपकी बात सही है कि ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि वो आपसे ज्यादा क्या सवाल कर ले। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा लगता है। ऐसा स्टूडेंट को स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। एग्जामिनर हमेशा एक बैलेंस्ड पेपर बनाता है, हमेशा। यानी उसमें वो इक्वल वेटेज देता है उसको, सम्स को भी, और इक्वल वेटेज देता है थ्योरी को भी। थोड़ा सा रुझान आजकल थ्योरी की तरफ ज्यादा है इस वजह से, क्योंकि कैलकुलेशंस करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, आपके पास जदीद तरीन कैलकुलेटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड अकाउंटिंग हर चीज आपके पास कैलकुलेट करने को देने के लिए एआई मौजूद है। तो आपको वो ज्यादा टेस्टिंग इस पे करते हैं कि भाई आपके ACCA स्किल्स कितने हैं। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ कि ये ACCA स्किल्स क्या होते हैं। ACCA स्किल्स में जो पहला ए है, दैट इज एनालिटिकल। दूसरा सी जो है वो है क्रिएटिव। फिर सी जो है वो है क्रिटिकल। और फिर ए जो है वो है एंटिसिपेशन। ये 4 स्किल्स की टेस्टिंग होती है बहुत जबरदस्त तरीके से। क्यों? क्योंकि अब हमने आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो एक कह लें काम जो होता जा रहा है वो ये काम है, रादर देन कि सिर्फ कैलकुलेशन उसको आती हो। कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए, बट अब ज्यादा अहम ये हो गया है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या आप किसी भी फिगर्स को देखकर आप एनालाइज कर सकें, आप क्रिटिकली उसको जज कर सकें, एंटिसिपेट कर सकें, और अपनी एक बेहतर जजमेंट और एक्सपर्टीज या कंसल्टेंसी दे सकें कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है या कहाँ तवज्जो करनी चाहिए, या कौन सा एरिया जो है इस वक्त जो है हाईली आपकी तवज्जो का मुंतजर है। तो खैर, ये ACCA जिसमें एनालिटिकल, क्रिएटिव, क्रिटिकल और एंटिसिपेटरी स्किल्स जो है, ये मैं इंशाल्लाह ग्रेजुअली आपको वक्त आने पर चीजें खोल खोल के बताऊंगी। अभी सिर्फ ये इस आपका क्वेश्चन जो आया तो उस पर मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर्स जो हैं वैसे तो एक वेटेज बराबर दे रहे होते हैं, सम्स को भी और थ्योरी को भी। स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होता है यार सिर्फ थ्योरी आ गई, क्योंकि उससे थ्योरी हो नहीं रही होती, तो सिर्फ उसको थ्योरी क्वेश्चंस ही नजर आ रहे होते हैं। या किसी को लगता है नहीं सिर्फ सम्स हो, इतने सारे सम्स दे दिए ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो वो उसको डिफिकल्ट लग रहे होते हैं, तो हर जगह उसको सम ही सम नजर आ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, एक बैलेंस्ड लेकर ये लोग चलते हैं, हमेशा बैलेंस्ड वेटेज दे रहे होते हैं। एंड जिस वजह से हमें एक बैलेंस पेपर मिलता है, और हमें इसलिए दोनों तरफ की तैयारी पूरी रखनी चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंस आजकल एग्जामिनर्स की थोड़ी थ्योरी साइड पे है, क्योंकि जो की बात है एआई आपका सब सम्स तो करके दे रहा है आपको। तो हमें तो अब इंटरप्रिटेशन के साइड पे जाना है, दैट हाउ टू इंटरप्रेट नंबर्स, हाउ टू एनालाइज देम, व्हाट जजमेंट शुड आई गिव। यानी कि एक चीज को देखते ही आप उसकी पास्ट और फ्यूचर दोनों का बता सको कि पास्ट में क्या हुआ होगा और फ्यूचर में क्या होने वाला है।
तो ये चीज जो है आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है बाय एसीसीए। नाउ, वर्किंग कैपिटल प्लानिंग। वर्किंग कैपिटल प्लान, अब इसको प्लान कैसे करें, वो कौन सी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, जरा जल्दी से पढ़िए। Different businesses will have different approaches to working capital investment. That is to the level of net working capital held due to general factors and company specific factors. For example, different working capital strategies. दैट्स इट। जनरल फैक्टर्स, इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है, आपका बिजनेस कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, एजुकेशन सेक्टर को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या फिर वेयर स्पेयर पार्ट्स की है, मशीन्स की है, एरोप्लेन्स की हैं, आप कौन सी इंडस्ट्री में हो, और वहाँ क्या सिस्टम चल रहा है, या वहाँ पे क्या रुझान है, क्या एक सेट पैटर्न है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, तो उस हिसाब से आपका भी होगा मिलता जुलता आगे पीछे। नेक्स्ट जो है वो है कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, कि आपकी पर्टिकुलर कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की, या आपकी कंपनी में किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, टीम कैसी है, तो ये सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। तो दो ही फैक्टर्स हो गए, जनरल फैक्टर्स एंड दूसरा कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स। नाउ आ जाइए नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। जनरल फैक्टर्स में नेचर ऑफ द इंडस्ट्री आ गई, पॉलिसीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स आ गया, सीजनल फैक्टर्स आ गया, ये तीनों पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल लेवल्स आपके अफेक्ट होंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है नेचर ऑफ इंडस्ट्री, अगर आपकी सुपरमार्ट है तो जाहिर है सुपरमार्ट को ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी इन्वेंट्री खरीद के रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो सुपरमार्ट कैसे वो चलेगा, होता है। जब शेल्फ खाली होंगे तो कस्टमर तो वापस चला जाएगा कि इसके पास तो होता ही नहीं स्टॉक। ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो इनको चाहिए कि हाँ इनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री पे करनी पड़ेगी, इनको कैश इन हैंड से ज्यादा इनके पास इन्वेंट्री स्टॉक होना चाहिए, तभी इनकी सक्सेस है। नाउ नेक्स्ट, पॉलिसीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स की अगर कोई पॉलिसी है और उसको बीट करने के लिए आपने कोई उसके बरक से पॉलिसी निकाल ली, वो अगर कस्टमर्स को ज्यादा फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स दे रहे हैं तो आपको भी सरवाइव करने के लिए देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे रहे तो फिर आप भी नहीं, आप भी रिलैक्स हो, आप भी नहीं दोगे। बट अगर आपके पास कॉम्पिटिटर है और आप मतलब यू आर इन द टॉप टू एंड द फर्स्ट वन इज गिविंग गुड कस्टमर क्रेडिट टर्म्स, तो फिर आपको भी देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स में क्या है, देयर मे बी अ नीड टू अलाउ इन्वेंट्री टू बी हायर एज अ सीजन ऑफ पीक सेल्स अप्रोचेस। Yes. अब इसमें हम ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में पीक सेल्स कब होती है किसी भी सुपरमार्ट में। वैसे तो सुपरमार्ट्स में जो है मंथ एंड में जो है वो ज़्यादा सेल्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा सामान वगैरह लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, और अभी अपकमिंग आने वाले सीजन, फेस्टिव सीजन, ईद के दिनों में हो सकती है ज़्यादा सेल्स। रमजान के दिनों में कैसा रश होता है रमजान से पहले, है ना, तो रमज़ान से पहले ऐसा ही है। वो उसमें यही बात होती है कि रमज़ान में वो प्राइसेस हाई हो जाती हैं, और उससे बचने के लिए लोग जो हैं वो हम्म बाजू का डिस्काउंट्स भी हो जाते होते हैं, तो उससे बचने के लिए कुछ लोग होते हैं वो पहले प्रेफर करते हैं, और कुछ होते हैं जो ड्यूरिंग या उस दौरान लेना पसंद करते हैं। हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है। अपनी अप्रोच होती है, एग्जैक्टली exactly। तो खैर, लेकिन एक जो जनरली देखा जाता है कि रमजान से पहले या रमजान के दिनों में कुछ ज्यादा ही सेल्स बढ़ जाती है, सुपरमार्ट्स खुले होते हैं, फिर ईद से पहले कुछ बढ़ जाती है, तो इस बिल्कुल ऐसे ही है। सीजनल फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपको मेक श्योर करना होता है कि आपके पास स्टॉक हो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। आपको अपने सीजनल पीक्स पता होने चाहिए एज अ कंपनी एज अ बिजनेस कि हमारी कब कब होते हैं, ताकि उन दिनों आप मैक्सिमम अवेल कर सको प्रॉफिट्स को, सेल्स को, और लूज नहीं करो जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ऐसे ही है। company specific factors. Net working capital will also depend on a company's sales and its working capital strategy, ये उनके specific हो सकते हैं। To rise at different rates depending on the working, okay fine, ये सब वही बात है, आगे बढ़े हैं। दो तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, एक स्ट्रैटेजी है अग्रेसिव और दूसरी है कंजर्वेटिव। अब इन दोनों का क्या मतलब है भाई, आप पढ़िए और मुझे समझाइए क्या समझ आए। Minimize that we can arrange to keep inventory as well as possible.
मैक्सिमम स्क्वायर एज पॉसिबल। ठीक है, हेलो, I know the communities and procedures that's players on time. Trading problems, dropouts. पहले स्टेट एग्रेसिव में तो यह है कि वो कोशिश ये करते हैं कि भाई इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल को जितना कम रखा जाए, और प्रायोरिटी दी जाए लिक्विडिटी को, कि ठीक है जी कि आप लिक्विडिटी मेंटेन करें, बाकी चीज़ें छोड़ें। और कंजर्वेटिव अप्रोच ये है कि आप सप्लायर्स को ऑन टाइम पे करें, ठीक है, और जितने कम हो सकते हैं आप अपने पेबल्स को कम रखें, और अपनी जो इन्वेंट्रीज है और रिसीवेबल्स हैं उनको आप स्टॉक आउट ना होने दें। मतलब आपके पास हर वक्त की जो डिमांड है वो आप हर वक्त मीट कर सकते हो। लेकिन उसके भी नुकसान आते हैं और इसके भी नुकसान, नुकसान दोनों के अपने अपनी जगह हैं। और ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स एक में कम हो रहे हैं और दूसरे में ज्यादा हो रहे हैं। That's it. राइट। तो एक स्ट्रैटेजी जो है अग्रेसिव, वो लिक्विडिटी को प्रायोरिटाइज करती है कि हाथ में पैसा होना चाहिए, और दूसरी कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी कहती है कि भले हाथ में पैसा ना हो, छोड़ो हाथ पैसे को, आप स्टॉक अपना मेंटेन रखो, आप रिसीवेबल्स अपने रखो, और अपने सप्लायर्स को भी टाइम पे पेमेंट करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अग्रेसिव में लिक्विडिटी प्रायोरिटाइज हो रही है, Right. कंजर्वेटिव लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, एक को याद रख लोगे, दूसरा उसका ऑपोजिट है। अग्रेसिव प्रायोरिटाइज लिक्विडिटी, ऑपोजिट कंजर्वेटिव कॉम्प्रोमाइज। लिक्विडिटी। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग ओवरऑल वर्किंग कैपिटल नीड्स। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या है किसी भी कंपनी की? तो वो हमें कुछ रेशियोज बता रहे हैं जिनको हमें देखना है। इन्वेंट्री डेज, पेबल डेज, रिसीवेबल डेज, ये रेशियोज हमें निकालना सीखना है, और ताकि हम इसको करें। अच्छा, ये अब देखें, फॉर्मूला टू लर्न आ गया हमारे सामने। तो अब आप अपना रजिस्टर खोल लें, चैप्टर लिख लें वर्किंग कैपिटल, और ये पहला फॉर्मूलाज हैं जो आपने रिकॉर्ड करने हैं। वैसे तो ये कोई न्यू चीज नहीं है, ये F7 में भी आप पढ़ के आ रहे होंगे, और F2 में भी ये रेशियोज हम पढ़ चुके हैं। तो इट्स नॉट न्यू, बट येस ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न इट आपके जहन से लाने के लिए। इन्वेंट्री डेज, फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, जल्दी से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, डन हो गया। यस मैम, डन। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके,
एग्जाम फोकस पॉइंट जरा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। नॉर्मली इन द एग्जाम इन्वेंट्री कैन बी अज्यूम्ड to be of finished goods. If this is not the case, that is, inventory is a raw material or work in progress, and the calculation will need to be adjusted to reflect the costs incurred in bringing the inventory to its present location and condition as follows. यानी कि इसमें ये बात हो रही है कि वैसे तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि फिनिश गुड्स की बात हो रही है जब भी इन्वेंट्री का जिक्र होगा एग्जाम में, मगर अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन्ड है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है या रॉ मटेरियल है, तो फिर हमें उसको एडजस्ट करना होगा और उसको प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए और कंडीशन पे लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसको भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एसी, एसी दुकान से खरीदा है और कस्टमर के घर पे लाना है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, खरीदने की कॉस्ट एसी की प्लस उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट और उसको उसकी डिलीवरी कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट उसमें मिलाई जाएगी तो जाके आपको एसी की रियल कॉस्ट पता चलेगी कि अच्छा ये कॉस्ट है। सो यहाँ पे सही है। एक चीज है कि उसको प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए और प्रेजेंट कंडीशन पे वर्किंग कंडीशन पे लाने की कॉस्ट भी उसमें आपको शो करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी। So as you can see over here, work in progress divided by cost of production multiply by 365. Raw material divided by raw material purchases multiply by 365 days of raw material inventory. आप ये दोनों ऐड कर सकते हैं अपनी फॉर्मूला शीट में। एंड साइड में कहीं ये भी नोट कर लीजिए कि एग्जाम हो सकता है आपको क्वेश्चन बोले कि 360 डेज कंसिडर करो। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि 6 मंथ का पीरियड है तो जहाँ पे आपको 180 डेज सामने रखने हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मिस आउट हो जाती हैं जिस वजह से गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए इसको अभी से कहीं पे अपने फॉर्मूला शीट के साइड पे ही यहाँ पे रिकॉर्ड कर लें कि क्वेश्चन एग्जामिनर माइट आस्क 360 डेज एंड एग्जामिनर माइट इवन आस्क 6 मंथ, 6 मंथ मतलब 180 डेज। ओके। ठीक हो गई कहानी, आगे बढ़े। अच्छा जी, अभी जी। हमारा आवाज। हेलो, आवाज आ रही है। हाँ, कुछ कह रहे थे अभी वो बीच में, मैं आवाज स्टार्ट हो गई थी थोड़ी सी। यही लास्ट का है कि 6 मंथ पीरियड 180 डेज एंड 365 जो है वो 360 डेज भी एग्जामिनर मेंशन कर सकते हैं। ओके। ओके। नाउ अच्छा, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में इन्होंने एक और चीज भी यहाँ मेंशन की है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेंट्री डेज हो सकता है एग्जामिनर बोले इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बताओ, तो मतलब वही बात पूछ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ रिसीवेबल डेज हो सकता है एग्जामिनर बोले अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बताओ, एंड इंस्टेड ऑफ पेबल डेज एग्जामिनर हो सकता है बोले अकाउंट्स पेबल पेमेंट पीरियड बताओ। तो ये सब एक ही चीज के नाम है। इन्वेंट्री डेज अगर है, होल्डिंग पीरियड सेम चीज है। इन रिसीवेबल डेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड सेम है। पेबल डेज या पेबल पेमेंट पीरियड सेम है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये एक बिल्कुल छोटी सी एक्टिविटी है, सवाल है, इसको जरा खुद से ट्राई आउट कीजिए। आपके सामने फॉर्मूला शीट में सब कुछ सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, उसको सामने रखते हुए जरा ये ट्राई आउट कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का वक्त दे रही हूँ।
जी सैफ, कुछ हो रहा है? मैम इसमें ऐसे होगा कि आपको ट्रेड पेबल दिया हुआ है ना, ये 73 डेज जो दिए हुए हैं, ये आपको ट्रेड पेबल पीरियड दिया हुआ है। और ट्रेड पेबल का फॉर्मूला है कि इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय क्रेडिट्स परचेजेस। ठीक है। और आपके पास सेल्स हैं। जी, आपको ये क्यों लग रहा है कि पेबल्स पूछा जा रहा है या ये पेबल डेज दिए हुए हैं? कस्टमर, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रिसीवेबल्स हैं। मैं गलत हो गया। 73 आपके पास रिसीवेबल पीरियड है। यस। और ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स आपके पास फार्मूला हो जाएगा इसका, जो हम्म। ट्रेड रिसीवेबल्स का है, तो फिर इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम्म। और आपके पास आ जाएंगी, इन ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसी को आप यूज करते हुए। जी, आंसर बताइए, आंसर। नहीं, मैंने भी उस तरह प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया वो अभी। इसमें अगर हम कैलकुलेटर में, ठीक है, क्लास ये के हो गया। कैलकुलेटर साथ रखें और रजिस्टर भी, क्योंकि ये मैं एग्जाम्स आपसे करवा रही होंगी। ठीक है। अच्छा जी, तो ये ओके। सोल्यूशन देख लेते हैं। आपने सही इसको पिक कर लिया, पहले आप गलत ट्रैक पे जा रहे थे, पेबल्स कह रहे थे, बट ना। पेपर्स कह रहा था मैंने। तो ये चीज, और थोड़ी सी। अब आप देखिए, जब आप खुद अपना, जब आप बताते हैं कि हाँ ये, तो आपको खुद अपनी गलतियां आइडेंटिफाई होती हैं कि अच्छा मैं कहाँ गलत हो जाता हूँ। ठीक है। तो ये इस तरह से फिर अब आपने नोट रखना है कि मैंने पेबल्स क्यों कह दिया अचानक से। तो मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है कि कस्टमर पे कर रहा है कि सप्लायर पे कर रहा है। अगर कस्टमर पे कर रहा है तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए रिसीवेबल है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिसीवेबल है। ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आ रहा होगा, $1,72,800। ओके। राइट। ओके। तो ये अब आप नेक्स्ट क्लास से अपनी कैलकुलेटर भी रखेंगे, रजिस्टर भी रखेंगे, क्योंकि हम साथ साथ कुछ चीजें कर भी रहे होंगे क्लास में, कुछ चीजें मैं होमवर्क के लिए दे रही होंगी। ठीक है। तो हम अब यहीं तक स्टॉप करते हैं। और आपने घर पे अब ये वाला सवाल करना है, 1 मिनट बताती हूँ। क्योंकि ये वर्कबुक है, तो वर्कबुक बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होती है कि इसमें आपको साथ साथ वर्किंग करने के लिए भी बहुत सारे सवालात होते हैं। तो ये सवाल आपने दोबारा घर पे एक दफा करना है, और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी ये वाला, ये वाला आपने खुद से घर में ट्राई करना है, एक्टिविटी 2। ठीक है। ओके। तो आज और यहीं पे पॉज कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात अगली क्लास में होगी। ठीक। ओके, मैं कुछ और बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जी पूछे। कि लिहाजा मतलब ये कि एफ एफ एम तो मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा। ये मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जून के लिए तो एफ एम मैंने डिसाइड हम्म। कर दी है। हम्म। ठीक है। काइंडली एक चीज मुझे बताएं कि ये कॉस्ट क्या होगी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक व्हाट्सएप पे नंबर शेयर करूंगी, उस नंबर पे आपको कॉस्ट भी पता चल जाएगी और आपको अकाउंट डिटेल्स भी पता चल जाएंगी। ठीक है। और डेज एंड स्केड्यूल भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जो हमारी क्लासेस का होगा। अच्छा। और दूसरी, और बताएं। और दूसरा ये कि हम, हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन ये भी हुई थी कि आप कॉम्बिनेशन में कौन सा लेंगे जून अटेम्प्ट के लिए, राइट? नहीं, मैं ये चीज एक तो वो भी डिस्कशन करनी है, क्योंकि दूसरा ये कि मैंने 2 पेपर्स मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किए थ्रू माय, मतलब पूरा एक दफा ही मैंने रिस्क लिया था एफ आर और ऑडिट का। हम्म। तो उसके बाद से मैंने ऑडिट तो मेरा बहुत बुरा गया था। मतलब कि मेरे इतने लोएस्ट मार्क्स आए थे कि मैं उसके बाद मैंने 2 पेपर उठाने की कभी दोबारा जहमत हम्म। नहीं की। एफ आर नहीं की मैंने। एफ आर मेरे जो था, एफ आर मेरा क्लोज गया था 46-47 पे। हम्म। उसके बाद मैंने फिर एफ आर सिंगल अटेम्प्ट में करके एफ आर को क्लियर कर दिया था। लेकिन हम्म। ऑडिट उसके बाद नहीं हो सका। हम्म। और अभी जो दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो चीज़ आप बता रहे हैं कि ये जो होती हैं हमारी जो ट्रिक्स हैं। हम्म। आपने सेक्शन ए बी मेरा, उसका मैंने आपको रिजल्ट बताया था। हम्म। ए बी में तो मेरा सेक्शन ठीक चला जाता है। मतलब हम्म। ऑडिट को छोड़ के बाकी सारे पेपर्स का सीक्वेंस यही है कि आप कम से कम 60 में से 40 मार्क्स तो आप हम्म। आराम से गेन कर लेते हैं सेक्शन ए बी में। जी जी। आपने सेक्शन बी में से सिर्फ, सी में से सिर्फ आपने 50, उसके 50% मार्क्स अचीव करने हैं, 20 मार्क्स आपने अचीव करने हैं।
आपका पेपर डन एंड डस्टेड है। जी जी। यही बात है, लिहाजा मैं सिर्फ ये चीज देख रहा हूँ कि पीएम की पीएम के लिए क्या, मतलब मैं एक और अटेम्प्ट देने मैंने अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ कि मैं मार्च में ऑडिट दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, हम्म। पीएम दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कुछ क्लियर नहीं है अभी फिलहाल। ये एक आपने कहा है भाई जून में एफएम देना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, जून में हम एफएम कर लेते हैं, ठीक हम्म। है। और श्योर शॉर्ट हो गए पेपर देते हैं, एफएम क्लियर हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरी अभी तक एफएम पे कोई अटेम्प्ट नहीं है। और जो रही बात मार्च के लिए, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी मार्च, अभी एग्जाम बुक होने में तकरीबन 3 दिन है, आज 24 या 27 आई थिंक लास्ट है, तो पीएम की आप क्या सजेस्ट करते हैं कि करती हैं कि इसका मतलब हम्म। जो प्रॉब्लम है वो, मतलब ऑडिट मेरे लिए तैयार करना इस वक्त थोड़ा, मतलब मैं कोशिश करूंगा, पॉसिबल एवरीथिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल, तैयार किया जा सकता है मार्च के लिए, लेकिन यह है कि वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत मांगेगा बजाय से कि मैं पीएम तैयार कर लूँ। हम्म। तो आप क्या अच्छा। कहती हैं कि पीएम हम्म। के लिए जो है वो सेक्शन सी इतना प्रिपेयर हो सकता है मार्च अटेम्प्ट के लिए अच्छा। कि मेरा पीएम अब मार्च में हो जाए और मैं मैंने जून आपकी में सारी बात सुनी। एफएम दे दूं? मैंने आपकी सारी बात सुनी सैफ, सारी बात आपकी कॉन्वर्सेशन हमारी फेसबुक की भी मुझे याद है, और अभी भी दोबारा मैंने सब कुछ सुना है। तो उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे और मैं एज अ मेंटोर अगर आपको गाइड करूंगी, तो मेरा मशवरा ये रहेगा आपके लिए कि आप अभी मार्च अटेम्प्ट में कुछ भी, कोई पेपर भी अटेम्प्ट नहीं करें, और आप प्लान करें जून के लिए। और जून के लिए दो पेपर्स आप उठाएंगे, एक तो F9 आपका पक्का है, और दूसरा आपका होगा पीएम। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एफएम और पीएम काफी सिमिलर हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे ओवरलैपिंग हैं। तो क्या हो रहा होगा कि F9 पढ़ते हुए वो टॉपिक्स रिवाइज भी हो रहे होंगे, और आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा कि आप पीएम को और अच्छे से तैयारी कर सको, पीएम और एफएम दोनों की। और जून में आप दो पेपर दो। मार्च अटेम्प्ट मेरी सजेशन बिल्कुल भी नहीं होंगी। बट अगेन आप एडल्ट हैं, आप अपने लिए खुद बेहतर फैसला कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा ये मशवरा होगा। अभी रिसेंटली मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने मेरा मशवरा फॉलो किया और पीएम और एफएम साथ में दिया, एंड माशाल्लाह दोनों का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है। तो ये मैं मेरा। उसी पोस्ट को मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया कि आप इनके पास जाएं, तो मैं उसी पोस्ट से ही आपके पास आया हूँ। मैं मेरे पास और मतलब जिसने मुझे रिकमेंड किया ना उसने कभी आपसे पढ़ा है और ना मैंने आपसे कभी पढ़ा है, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में जितने टीचर्स हैं उन सारों को मैं जानता हूँ मुझसे फिजिकली, मतलब टीचर चेंज कर करके मैं जो है ना वो उकताया हुआ हूँ। तो अभी मैं एक और फ्रेश चेंज करना चाह रहा था, इस वजह से मैंने कहा चले आपसे भी डिस्कस कर लेते हैं। हम्म। और पीएम फिर मतलब आप पीएम प्रॉपर मुझे करवा रही होंगी जून अटेम्प्ट के लिए, या सिर्फ सेक्शन सी की प्रिपरेशन करवाएंगी आप? नहीं देखिए, मैं आपको एफएम पे मेरा फोकस होगा, ठीक है, एफएम हम कर रहे होंगे। और एफएम में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पीएम में ओवरलैपिंग है। तो मैं जब एफएम करा रही होंगी ना आपको सेक्शन सी, क्योंकि हमने स्टार्ट ही वर्किंग कैपिटल से की है और हम हमारा फोकस ही सेक्शन सी है, क्योंकि मैंने ये अंदाजा लगा लिया है कि आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका माशाल्लाह स्ट्रांग रहता है। और टेक जितने मैंने आपसे सवालात भी किए, तो आपकी टेक्निकल नॉलेज है माशाल्लाह से। आई डोंट नो आप जॉब कर रहे हैं या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपका या नहीं। नहीं नहीं है, नहीं है, ढूंढ रहा हूँ अभी तक कोई उस हाँ। तरह का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। साइड आपकी मुझे लग रहा है कि है आपकी माशाल्लाह से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही बात है कि थोड़ी सी ट्रिक्स एंड टिप्स ही चाहिए, कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करके कि आप वो एग्जामिनर तक डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि मेरे पास वो स्किल है, और वो आपको पास कर दे। तो वो मुझे सेक्शन सी का ही लग रहा है, आप पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेक्शन सी से ही मैंने शुरू किया है, और सेक्शन सी करते करते जो भी मैं स्किल्स आपको एफएम के लिए बता रही हूँ, आप सेम स्किल्स को माइंडसेट में रखिएगा पीएम के लिए। तो आपने वो पीएम की तैयारी खुद ही करनी है, बट यस मैं आपको एडिशनल सपोर्ट ये दे दूंगी, आपको एक फेवर कर दूंगी कि आप पीएम के जो सवालात, जैसे आप सेक्शन सी के प्रैक्टिस करो आंसर्स, तो वो मुझे आप लिख कर सेंड कर दो, मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि हाँ आप सही ट्रैक पे हो या कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये मैं आपको एक फेवर कर सकती हूँ कि पीएम में अब इस तरह से आपको गाइडेंस दे दी जाए। और मैम अगर मैं आपसे कहूँ मुझे जून के लिए आप पीएम और एफएम दोनों आप प्रिपेयर करवाएं, तो काइंडली आप मुझे क्योंकि मैंने भी एफआर और ऑडिट में भी उस टाइम पे भी यही सीन था कि एफआर मेरी
हम्म। स्टक हुआ था। और ऑडिट में न्यू पढ़ रहा था, और मैंने वहां पर भी यही किया कि मैंने ऑडिट के लिए टीचर हायर किया। हम्म। ठीक है। और मैं ऑडिट के लिए मैंने मतलब स्पेसिफिक टीचर हायर किया हुआ था, पिंडी इस्लामाबाद से ही, नामी गिरामी टीचर हैं। ठीक है, लेकिन ये था कि मेरा ऑडिट उसमें बहुत बुरा गया। और एफ आर मेरा जो था वो तैयारी होने के बावजूद मेरा वो पास नहीं हुआ। तो फिर दोनों को ज़रा बैलेंस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो काइंडली अगर आप थोड़ी बहुत कॉस्ट मुझे बता दें कि मैं फिर उस हवाले से भी देख लूँ कि क्योंकि मैं काफ़ी तंग आ चुका हूँ सेल्फ स्टडी कर 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 करके। सेल्फ स्टडी से मैं बिल्कुल वो हूँ। तो और अगर पीएम और जून, एफएम और पीएम आप दोनों करवाएं तो फिर उसमें क्या होगा? ये नंबर है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा तो आपको बाकी की तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी सेल्फ। ठीक है। और बिल्कुल अब आपने घबराना नहीं है, फिक्र नहीं करनी इंशाल्लाह, बस जैसे गाइडलाइन आपको दी जा रही है आपने उसको फॉलो करना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जून में आपका इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों निकल जाएंगे, एफएम भी और पीएम भी। तो आप अपना माइंड और अपना इरादा फोकस कर लें जून अटेम्प्ट पर। और वो कहते हैं ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, मामूली सी चीज है। जब मैंने क्लियर कर लिया, मेरे मुझ जैसे और लोगों ने क्लियर कर लिया, तो आप भी इंशाल्लाह क्लियर कर लोगे, कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। और वन मोर थिंग कि अगर मेरी कोशिश कर रहा हूँ, जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर हो जाती है तो उस सूरत में क्या तरीकाकार होगा? मतलब दो पेपर स्टिल मैनेजेबल है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है जॉब के साथ का। देखिए, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि इस वक्त आप अभी जॉब की तरफ ना जाएं। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा मेरे हर स्टूडेंट के लिए यही होती है कि कम से कम F9 तक पूरा कंप्लीट कर लो स्किल्स का लेवल, फिर तो सारी जिंदगी ही जॉब करनी है। एक दफा फोकस्ड होके पहले अटेम्प्ट में मतलब एज सुन एज पॉसिबल निकाल लो F9 तक, फिर सुकून से जॉब करते रहना, फिर कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मरहला होता है, माइलस्टोन होता है F9 तक निकालना, कोई इट्स नॉट अ जोक। ठीक है, ये जब आपका हो जाए ना, अभी मेरे ये जो दो स्टूडेंट्स ने भी क्लियर किया तो इन्होंने भी मेरा यही मशवरा फॉलो किया कि इन्होंने फुल फोकस्ड होके पहले पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे हैं। देखिए, दो चीजें होती है, या तो वाकई में फाइनेंशियल इशू हो। अगर फाइनेंशियल इशू है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। बट अगर फाइनेंशियल इशू नहीं है तो बस एक दफा फोकस होके पेपर निकाल लें F9 तक, तो फिर इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल से आप ज्वाइन कर लें जॉब, जो भी जॉब करनी है। या कम से कम जून अटेम्प्ट में ये दो पेपर्स तो निकालें, तो दो पेपर्स रहेंगे तो फिर आप जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि पता है वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है जॉब, कहीं भी इस वक्त आप जाओगे आपको 9 to 5 9 to 7 ये लोग बिठाएंगे और खूब रगड़ा लगाएंगे। तो उसके बाद हिम्मत नहीं होती कि पढ़ाई पे तवज्जो दी जा सके। लोग पढ़ते हैं करते हैं मैनेज, बट बहुत मुश्किल होता है, डबल मुश्किल बढ़ जाती है। हम्म। ठीक है सर, चले आप इंशाल्लाह अपना ठीक है ख्याल मैम, चले। रखें, सोचिए। और मैं इसको मैं पूछ लेता हूँ कॉस्ट का। जी, जी। चलें आप अपना। चले, मुझे सिर्फ कॉस्ट पे डिस्कशन करनी है। बाकी ये हमारे हमारे साथ ये क्या होगा, क्लास हमारी अकेली होगी या इसमें और भी होंगे ऐड? हफ- हफ्ते में 3 दिन होगी क्लासेस, एंड स्केड्यूल एंड स्लॉट आपको दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी ठीक मच। है, ओके। ख्याल रखें, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह।